पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں جی سکلین بھائی، السلام علیکم حارث بھائی، کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں تقریباً آپ کو 3-4 ماہ پہلے سے سننا شروع کیا تھا۔ اچھا، جی سر جی۔ آپ کے ایمان کا تو کیا میں حال ہے پھر؟ سر ایمان تو چلا گیا ہے۔ چلے جی سر، اچھا، آپ سے پہلے سر میں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتا تھا، ان کا میں بڑا فین تھا۔ اچھا یہ دیکھ لیں اسٹوئک صاحب، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ انجینئر صاحب نا ایک اسٹیپنگ سٹون ہمارے لیے ثابت ہو رہے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ لوگ ان کے خلاف یوز کرنے لگ جائیں۔ تو اپنا تھوڑا جرنی بتائیں کہ آبویسلی مجھے پتا ہے کہ جس طرح ہم پاکستان کے جس طرح کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا نام اسلام ہے، یعنی کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، لڑکیوں کو تاڑو نہیں، اور دودھ میں ملاوٹ نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا گندا آدمی ہے، دیکھو جی یہ اسلام کے اصولوں پر نہیں چل رہا۔ لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، علمی طور پہ اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پھر بڑی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ یعنی آپ اپنی پٹھی صاف کر رہے ہیں پتھروں سے، آپ جی وہ کیا کہتے ہیں، آپ جی لونڈیاں رکھ رہے ہیں، آپ نے کس طرح سرطان سے جدا وغیرہ کی، جو عام طور پہ ہمیں ان باتوں کو نہیں پتا، یہ علمی گہرائی میں جا کے پتہ چلتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے معاشرے میں یہ دیوبندی بریلوی وغیرہ وغیرہ کا چکر ہے، جی بابا قبر سے نکلا، بابے نے صلح کرائی تو جی نکل گئے، جی بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی کافر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ اہل حدیث والے کافر ہیں، اہل حدیث والے کہہ رہے ہیں یہ دونوں کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی پڑھی جا سکتی وغیرہ، جو تفرقات ہیں ان کو انجینئر صاحب ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا کس قسم کا ماڈریٹ مسلم تھا یا کسی فرقے سے آپ کا تعلق تھا؟ پھر انجینئر صاحب کی باتوں نے آپ کو امپریس کیا کہ ہاں بھی یہ تو بابوں کے، انہوں نے چشتی یا رسول اللہ پڑھایا ہوا، تو یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تو پھر آپ نے جی کہا یار یہ بابوں کی تو چھٹی کرا دی، لیکن ایک بابا جی پہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حدیث شریف میں لکھا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو اپنا سنائیے ذرا جی اپنی کہانی۔ سر اس طرح تھا کہ میں جو تھا وہ بابوں کے تو بہت ہی خلاف تھا، انجینئر صاحب سے میں بہت ہی زیادہ امپریس تھا، نہیں ان سے پہلے، کیونکہ انجینئر وہ صاحب سے پہلے، انجینئر صاحب سے پہلے کیا تھے؟ ان سے پہلے سر ان سے پہلے تو حنفی جو ہے بریلوی تھا میں۔ اچھا تو پھر انجینئر صاحب سے آپ کو اس لیے آپ امپریس ہوئے کہ یہ جو بابوں کی جو ایکسپوز کرتے ہیں اس میں لاجک تو ہوتی ہے۔ جی سر وہ جی جی بالکل قرآن و حدیث سے وہ ریفرنس دکھاتے تھے، اس لیے میں ان کا جو ہے بڑا مقلد ہو گیا تھا۔ تو پھر جی آپ نے لیکن آپ نے پھر کیا ہوا کہ پھر آپ نے انجینئر صاحب کے فین تھے، آپ نے کہا باتیں صحیح کہہ رہا ہے، لاجیکل باتیں کہہ رہا ہے، یہ کون سے بابے ہیں جن کو خواب آتے ہیں، ہم ان کی باتوں پہ یقین لے آتے ہیں، بابے نکلتے ہیں صلح کراتے ہیں، قبر میں واپس گھس جاتے ہیں، بابا کو اڑ کے کہیں پہ پہنچ، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا، سونا ہی سونا، وہ ماما کی کہانیاں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آبویسلی لوگوں کو ایک طریقے کی جو توہم پرستی ہے، یہ توہم پرستی ہے نا، بابے نے یہ کر دیا تو بابے نے وہ کر دیا، جو درخت نہیں کاٹ سکتا، وہ گورے بھی آئے، شہباز شریف کا ٹریکٹر بھی آیا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم کاٹ کے دکھاتے ہیں، انہوں نے کاٹ کے دکھا دیا۔ تو اس طرح کی باتیں obviously لاجک کے خلاف ہے۔ تو پھر انجینئر صاحب کی کیا باتیں تھیں جو پھر آپ نے کہا کہ وہی لاجک جو انجینئر صاحب اپناتے ہیں، میں یہ اکثر کہتا ہوں جو لاجک انجینئر صاحب بابا جی پہ اپناتے ہیں نا، بابوں پہ، وہی لاجک اگر صحابیوں پہ، تابعیوں پہ اور رسول اللہ پہ اپنا دیں وہ بھی چھوٹی ہو جائے گی، رسول اللہ بھی سب سے بڑے بابا جی ہیں نا۔ تو جی بالکل سر۔ تو انجینئر صاحب سے کیسے پھر آپ کی ہوئی؟ سر وہ میں نے جو ہے نا میں یوٹیوب چلا رہا تھا تو آپ کی ویڈیوز ایک دم آگے آ گئیں، تو میں نے جب آپ کو سننا شروع کیا تو میرے جو ہے دماغ میں سوال شروع ہو گئے، میں نے سوچنا شروع کر دیا، آپ ہو گئے، غالب بھائی ہوں گے، ہو گئے جس طرح، تو پھر ان کا وہ جواب مجھے نہیں ملا سر۔ ہاں اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو لاجیکل باتیں ہیں انفارچونیٹلی ان کا 21ویں صدی کے
اور इससे लोगों को ये जो लोग जो इन तोहम परस्तियों वाली बातों पे मानते हैं, मुअज्जिज़ात के ऊपर यकीन रखते हैं, इनके लिए एक सोचने का मुहिम है कि आप देखें कि आजकल के ज़माने में भी बाबे आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जी वो क्या है जी, वो क्या नाम है उसका, वो जो सुर्ख दाढ़ी वाला लियास कादरी? नहीं। जी, जी। जी, जी हाँ, सर, वही। वो जी नवाला छोड़ा तो वो नवाला 20 साल बाद अभी भी रोटी का ऐसा ताज़ा नवाला पड़ा हुआ है जैसे, वो लोग मानते हैं। वो कहते हैं हमने फ्रेम करा लिया। तो सर जी मतलब तो मैं उस जो है ना, हुँ, मैं सर वो जो इंजीनियर साहब को सुनता हूँ, अभी भी मतलब सुनता हूँ, लेकिन घर वाले जो है वो मुझे बड़ा डाँटते वगैरह हैं, कहते हैं तुम क्यों सुनते हो? हालाँकि मैंने तो उनको नहीं बताया कि मैं इस तरह मतलब छोड़ चुका हूँ नाम। अच्छा, नहीं तो वो कह देंगे आप इंजीनियर को भी क्यों सुनते हैं? जी सर। हाँ, तो इंजीनियर साहब को भी जी, हमें वो तो उसके भी इंजीनियर्स बड़ा ख हाँ, वो सारे लोग हैं ट्रेडिशनली इंजीनियर के बहुत खिलाफ, क्योंकि इंजीनियर की बातें अनफॉर्चुनेटली बड़ी लॉजिकल हैं एज़ फार एज़ बाबेज़ आर कंसर्न्ड। एज़ फार एज़ इस्लाम इज़ कंसर्न्ड वो हमें लॉजिकल बातें नहीं लगती इंजीनियर साहब की। लेकिन इंजीनियर साहब की जो शख्सियत है, उस पे हम कह सकते हैं कि उनकी कि जो वो बात कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं। अब लेकिन एनीवे वो यानी उनमें कोई वैसे मुनाफ़िकत नहीं है। तो एनीवे तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका आए, आपने कहानी सुनाई अपनी सर और एक और क्वेश्चन है जी, मेरा। जी, जी। सर एक वजह ये भी है कि वो अब आजकल तो लाइव भी आ रहे हैं, लेकिन वो डिबेट नहीं करते किसी से, ये उनका मसला है बड़ा। वो डिबेट करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी उनके साथ डिबेट हो कुछ। वो डिबेट तो खैर मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि डिबेट में जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, वो बड़ी चीज़ों को रोक देते हैं। यानी डिबेट में मैं 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मुझे बोलने का मौका मिलेगा। 5-5, 10-10 मिनट के सेक्शन। मैं अपनी बात कर दूँगा, वो अपनी बात कर देंगे और बीच में मेरा ख़्याल आधे पौने घंटे की आम गुफ्तगू-शुनीद जो आधे पौने घंटे की जो आम गुफ्तगू-शुनीद होती है ना, मैं चाहता हूँ वो जी, हो। वो जब होती है ना, जैसे हमज़ा के साथ हुई थी, जैसे मुफ्ती उस्मान के साथ हुई थी, अबू लैथ के साथ हुई थी, वो 4 घंटे तक चली गई थी। तो आपस में आम बातें हो रही हैं। कोई किसी के साथ काटा-कौटी नहीं चल रही और ऐसे ही होनी चाहिए बात। वो जो है ना, वो अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज़ से डरते हैं, घबराते हैं। क्योंकि अब लेकिन ये ऐसी वजह नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। ये हम देखते हैं अब जैसे मुफ्ती वाजिदी साहब हैं, उन्होंने हौसला पैदा किया, वो लाइव कॉल लेते हैं हमारी तरह एथियस्टों से। लेकिन उनका मसला है, वो एक देवबंदी हैं। हम उनको देवबंदी एंगल से ही बात करें, तो उस पे वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारे 2 भाइयों का आपस का मामला। वो मुफ्ती फजल हमदर्द बरेलवी है, वो जी ये आप लोग तो एक-दूसरे को काफ़िर समझते क्या है, एक-दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ लेंगे, वो ये नहीं कह सकेंगे। जो दूसरे जो लौंडे-लपाड़े हैं, जो एंटी एथियस्ट जो हैं, वो कह देंगे हम शिया के पीछे, क्योंकि वो किसी मकतब फ़िक्र को नहीं कहा। मुफ्ती साहब की एक स्टैंडिंग है, मुफ्ती साहब एक मकतबा फ़िक्र को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो अगर वो कोई ऐसी बात कह देंगे जो उनके मकतबा फ़िक्र से बाहर निकलती है, उस पे वो फँस जाएँगे। उनको फिर अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो फिर जो थोड़े-सा हमारे जो एडवांस लेवल के जो एथियस्ट हैं, बराबरी की सतह पे वो उनसे बात नहीं करेंगे। हमारे स्टोइक साहब भी अगर उनसे वन ऑन वन वैसे, बल्कि क्या ख़्याल है स्टोइक साहब? आप उनसे न्यूट्रल चैनल पे इस तरह की गुफ्तगू-शुनीद, मेरा ख़्याल से यू आर रेडी। व्हाट डू यू से? नहीं, हारिस देखें, उनके साथ जो बात है वो कभी भी हमसे अपने मकतब फ़िक्र के चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों मानेंगे? वो कहेंगे कि भाई आप कौन हैं हमारे जो आपस के मसाइल हैं, जो हमारे फ़िरोही मामलात हैं, उन पे कमेंट करने वाले। वो हाँ, उस पे ज़रूर तैयार हो सकते हैं कि ठीक है, एथियज़्म वर्सेस इस्लाम पे वो बात करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन दे विल नेवर एग्री उसकी वजह है ना, टू डिफेंड ओके, देवबंद विद अस। ओके, उसकी उसकी वजह है ना, क्योंकि एथियज्म का जो मुकदमा है, उसका हुँ, बहुत बड़ा मुकदमा ये भी है कि मुसलमान तो आपस में एग्री नहीं करते, तो कौन सा इस्लाम माने? ये उनकी हुँ, 2 नंबरी है, जब ये कहते हैं नहीं आप पहले अल्लाह और रसूल पे मान लें, फिर बाकी चीजें फरोही मसाइल हो जाते हैं। तो हम हुँ, हमारा तो वन ऑफ द मुकदमा, क्योंकि हम है असल में ओपन वर्ल्ड सोर्स, फ्री हुँ, मार्केट है। ये लोग फ्री मार्केट नहीं, कम्युनिज्म है ये एक सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं, और उस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा दरवाजे हैं। हमारे भी हर सिस्टम के कुछ दरवाजे होते हैं, लेकिन हमारी फ्री वर्ल्ड का मतलब ही इसीलिए इसको फ्री वर्ल्ड बोला जाता है। जो एथियस्ट लिबरल आइडियोलॉजी जो है, ये फ्री वर्ल्ड आइडियोलॉजी है, ये फ्री आइडियोलॉजी है। आप इसको किसी हमारे से क्यों ये बात कर सकते हैं अबॉर्शन पे? बंदा पूछे अबॉर्शन का हुँ, खुदा के होने ना होने से क्या ताल्लुक है? क्यों 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 और हम कर लेते हैं इनसे, हम किसी भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, विच विल
be resolved by any type of world view. तो हम उनसे इसीलिए अगर हम इनसे ये बात कर लें, हम यानी इनसे कैमल यूनियन पे बात कर लें क्योंकि वो सही बुखारी में लिखी हुई है, हम इनसे ये ना पूछें कि जी आपके आप तो समझते हैं कि जो 72 फिरके हैं उनमें से एक ही फिरका सही है और वो समझते हैं आपके वाला फिरका सही है, तो बाकी ये जहन्नुमी है, क्या इनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? तो उस पे ये फंस जाएंगे, उस पे ये इसीलिए जो आपने कहा ना वो बात ही नहीं करेंगे, वो मैं आपको ये कह रहा हूं वो इसलिए नहीं बात करेंगे। ये इंजीनियर साहब का बड़ा भोंडा आर्ग्यूमेंट है कि जी पहले हम उस पे बात करेंगे फिर बाकी जिस भी बातों पर मान लिया हम। डिबेट्स तो होती ही अंडर ए प्रीटेंस कि हमने मान लिया कि कोई खुदा है, ठीक है, डिबेट का जब टॉपिक सेट होता है ना वैसे ही होता है, हमने मान लिया कोई खुदा, अब आए वो खुदा आपका अल्लाह है, तो उसके ये उधर भी बात कहते पहले आप अल्लाह पे ईमान ले, ईमान लाने के लिए भी या तो वो टॉपिक होते चले उसमें हमने मान लिया, अब आगे चलें, अब क्या करेंगे आप? अब हम आपसे पूछेंगे अल्लाह ने जी 14 अरब साल पहले कुरान लिख दिया था, तो अब वो कह रहा था उसके अंदर लिख दिया कि अल्लाह इसकी अबू लहब के हाथ टूटे। सर वो ये कहते हैं ना सर वो ये कहते हैं ना कि अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मान लेंगे तो बाकी सारे सवाल जो है वो फिर बेमानी हो जाएंगे। कैसे बेमानी हो जाएंगे? असल तो गेम तब शुरू होती है जी। हाँ, इस पे मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये जो बात कहते हैं ना, इसमें थोड़ी सी ये चीज छुपाते हैं, ये ड्रामा करते हैं यहाँ पे। अगर इस बात को हम मान भी लें कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सारे सवाल बेमानी हो जाएंगे, तो आपने सिर्फ ये साबित नहीं करना कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उन्होंने ये भी साबित करना है कि ये गॉड अल्लाह ही है। असल प्रॉब्लम इधर है, ये कुरान उस खुदा की किताब है जो कि एक पूरे दुनिया का बनाने वाला पालनहार है। खाली क्लेम से सिर्फ अल्लाह ने कुरान में लिख दिया कि मैं हूं, डजंट मीन कि वो वही है। तो इसलिए साबित ये जो बारे सबूत है ना कि उस खुदा का और अल्लाह का ये एक ही चीज है, ये बारे सबूत उन्हीं पर है। और हम उसको काउंटर इस तरह कर सकते हैं कि जो बातें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं और जिस तरह के अहकाम अल्लाह दे रहा है, क्या ये कैन इट बी फ्रॉम दैट वन क्रिएटर जो खुद जिसको अनश्योर है, जो अपनी बातें बदल रहा है। तो ये मामला आते हैं। असल मसला ये नहीं है कि खुदा है तो वो डायरेक्शन, अगर मैं इस बात को मान भी लूं कि खुदा फिर कोई भी डायरेक्शन दे सकता है अगर वो कोई क्रिएटर है, लेकिन असल पहले ये तो पता चले कि ये अल्लाह मियां ही वो खुदा है या नहीं है। और ये आई थिंक जो मैंने जो आपसे प्राइवेटली भी बात कर रहा था कि इनको इसका फायदा हुआ है। आम मुफ्ती आजम डॉक्टर जाकिर नाइक तो पुरानी कहानी है ना, आम मुफ्ती साहब जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, ये नए जो आ रहे हैं लोग जैसे कैसर राजा है और ये दूसरे भी हैं, हमने इनके लिए एक मार्केट क्रिएट कर दिया कि दे कैन कम एंड ट्राई टू, और ये डिस्कोर्स का फायदा है, डिस्कोर्स आगे जा रहा है, हमें इससे खुशी हो रही है कि आम मुफ्तियों के दरवाजे खड़खड़ा के कुंडियां टूटने वाली हो गई हैं, दरवाजा वो हिंजे से बाहर आ गया, वो आगे से जवाब ही नहीं देते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही है बाबा ये तो बाबा निकला। ये जो है ना ये थोड़ा सा, और इनके भी अपने आर्गुमेंट्स ये ऐसे नहीं जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको ऑब्वियसली नहीं पता, ये जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट है ना माइकल बीही जैसे या ये ये उनके कॉपी किए हुए आर्गुमेंट्स हैं जिनकी धज्जियां ऐसे 15 साल पहले हिचन्स और ये लोग उड़ा चुके हैं। तो इनके जवाब हैं हमारे पास आ रही है कि जी इंसेस्ट हो जाएगा, ओ जी ये बीडीएसएम, और ये थोड़ा सा उन्होंने अपना किया, उसकी हमने धज्जियां उड़ा दी थी आर्गुमेंट। चलो बहुत शुक्रिया आने का सकलैन, अब अगली कॉल भी लेनी, दोबारा भी खालिद के पास भी जाइएगा। ओके, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।